NTA इज़ वेरी फेमस नाउ डेज. एग्जामिनेशन होता है, डेट्स आती हैं और फाइनली कैंसिल हो जाता है. ठीक है, चैलेंजेस हैं विद द NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बट द थिंग्स आर नाउ इम्प्रूविंग. बट विल नॉट डिस्कस अबाउट द NTA, द एग्जामिनेशन, द चेयरपर्सन एंड जो थिंग्स चल रही हैं NTA के अंदर. जस्ट लीव इट. Now, the important thing that has been updated, I guess you have gone through this, but I have very important points to consider before this application. So this is regarding the DHR ICMR 2024 Biomedical Research Eligibility Test, that is BRET. तो ये अगर आपने देख लिया है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखा है सो देयर इज़ अ टाइम. लास्ट डेट ऑफ दिस ऑनलाइन फी पेमेंट इज़ 9th of July. Closure of application registration is also 9th July. एंड जो टेंटेटिव डेट है रिगार्डिंग दिस पब्लिक नोटिस आप देख सकते हो. दिस इज स्टिल टेंटेटिव. देर इज 31/7/2024. इट मे वेरी, बट हमको ये चीज़ पे फोकस नहीं करना. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल गया है, इसको अप्लाई कर लो, दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल. इट इज़ वेरी कॉमन इंस्ट्रक्शंस आर देयर, यू कैन गो थ्रू इट. सिंपल फॉर्म कैसे भरना है, दैट इज़ वेरी सिंपल. नाउ move on to the best part of this. This is a DHR ICMR, जो ICMR JRF का एग्जामिनेशन कराता था. now it has been changed to DHR ICMR non-medical fellowship for the PhD biomedical research eligibility test. काफ़ी लोगों को हो सकता है इसके अंदर डाउट हो. so everything has been mentioned very clearly about the vision, about the core activities, क्या criteria है, and dates के बारे में already we have discussed. These are the fees, which is the application fees I can say, and the name of examination as you have already known कि कौन सा examination होगा. The mode of examination is computer based test, that is CBT, right? and it's a MCQ based test. examination 120 minutes का होगा, यानी 2 hours का, and it should be on different centers. so examination centers will be allocated later, right? first we have to fill the form. But the important things which you have to consider, you must know about this application is, these are the instructions for the form filling. I'm not going to discuss in detail about this. Just move on to the this examination is for. This examination is basically for the biomedical research eligibility. So for the biomedical students, this examination is perfectly, I can say, one of the ideal examination for you if you are willing to do some biomedical based research, because it's an reputed institution in India, one of the only institution in India जो biomedical research पे focus करता है through its various institutions. so the name is BRET. about ICMR and DHR, if you want to read it then you can go ahead. 27 permanent mission oriented institutions हैं जो different locations पे हैं in India, जो वर्क करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉलरा, डायरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, एड्स, मलेरिया, कालाजार, वेक्टर कंट्रोल, न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, immunohematology, oncology, medical statics, etc. And there are various regional centers also. So see, this is the need of an hour. अगर आप biomedical से हो, so just leave all the research behind in institutions, in universities. These are the major things which are focused nowadays in India, and this will be the future of PhD, or I can say the students who will involve in this research course. See, this is all about like how this course has been introduced, what are the task force, what the strength is and all, what are the fellowships and all, right? अभी आपको क्या देखना है? टू ब्रॉड एरिया ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, दैट इज़ द एडवांस टूल ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी. तो आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ आप काम करेंगे इस एरिया में, डिस्क्रिप्टिव, डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, राइट? दीज आर द 4 एरियाज. हम इनके अंडर में ही वर्क करोगे आप जिस भी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर होगे फ्यूचर में. डिस्क्रिप्टिव, डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी. एंड दिस इज ऑल अबाउट द DHR. इट इज़ at present it is of no use for you.
नाउ अबाउट द एग्जामिनेशन, JRF आपको मिलेगा PhD परस्यू करने के लिए UGC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में 27 इंस्टीट्यूट जो हैं उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा PhD के अंदर, एंड दिस डिग्री विल बी एसोसिएटेड विद ACSIR एकेडमिया फॉर साइंस एंड रिसर्च, राइट। जो ACSIR के थ्रू आप CSIR लैब्स में जाते हो, अभी आप उसी के थ्रू ICMR इंस्टीट्यूट में रजिस्टर होगे फॉर PhD। इस एग्जामिनेशन के बाद a total of 500 fellowships will be awarded to the work in the field of biomedical research. So be active. This examination is very good. This is a category like benefit. Educational qualifications क्या रहने वाली हैं, कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर, MSc और एनी इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, फॉर एग्जांपल M.Tech और M Pharma भी, किस सब्जेक्ट में? लाइफ साइंस, जोलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। देखिए कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं बचा, बायोलॉजिकल साइंसेज, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, पब्लिक हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, with minimum 55% marks in PG, then you are eligible. और रिलैक्सेशन है कैटेगरीज को, जो हमेशा होता है। सो उनको फॉर्म फिल करना है दैट यू आर इन अ फाइनल, अगर आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में हो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म, राइट। अपर एज लिमिट, डिक्लेरेशन इज ऑल द थिंग्स। एग्जामिनेशन देख लो, स्कीम ऑफ टेस्ट क्या होगी, आपको एग्जामिनेशन देना होगा, नेगेटिव मार्क भी है, सो प्लीज़ बी केयरफुल इस एग्जामिनेशन को। अब देखो जो सेक्शन है, देर आर 2 सेक्शंस, द वन इज एप्टीट्यूड सेक्शन। आप भूल जाओ कि दिस इज अ सब्जेक्टिव टेस्ट, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के हो तो सारा बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा, नो, योर इवेल्युएशन, योर एप्टीट्यूड विल बी इवेल्युएटेड इन दिस एग्जामिनेशन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। इवेल्युएट कॉम्प्रीहेंसिव एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स अक्रॉस डाइवर्स फील्ड। रीजनिंग टेस्ट की जाएगी आपकी, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग एंड ऑल। देन एनालिटिकल एबिलिटी भी चेक की जाएगी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड क्वालिटेटिव कंपैरिजन। सो प्लीज़ मेक श्योर ये जो 50 क्वेश्चन का सेट है, दिस इज ऑफ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर सब्जेक्ट। और जो 50 क्वेश्चंस हैं, दीज आर ओनली फ्रॉम दिस सेक्शंस, नॉट इन जनरल। सो प्लीज़ बी केयरफुल, सिर्फ इन सेक्शंस को रीड आउट करना है आपको बहुत अच्छे से। नाउ द सेक्शन C would comprise 50 questions relevant to the applied or analytical part of the biological process for the 11 specific discipline or subject as listed below. अब आप इस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे एंड इस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं उसमें से एक सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे एंड यू विल गेट अ 50 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आप फार्माकोलॉजी से हैं तो फार्माकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस चूज़ करेंगे तो इवन दिस विल कम फॉर दिस, राइट। इवन वेटनरी साइंसेज भी है, सो इट्स वेरी गुड फॉर ऑल। इंग्लिश सिर्फ मीडियम होगा, हिंदी नहीं होगा, एंड दीज आर द सब्जेक्ट कोड्स विच यू हैव टू फिल जब आप फॉर्म फिल करेंगे। एंड नाउ दीज आर ऑल द जनरल इंस्ट्रक्शंस, आई डू नॉट गोइंग टू रीड दिस इंस्ट्रक्शन, सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप जितने लोग भी हो, जस्ट फिल दिस फॉर्म, go for the PhD because you will get to register in PhD for ICMR institutions, and this is a very good initiative from DHR, ICMR and academia for like CSIR. So all the very best। जिन लोगों ने एप्लीकेशन फिल कर दिया है उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और जो लोग एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एनी डाउट यू कैन जस्ट कॉमेंट and fill this form very, very, very carefully. Bye bye, take care.